हेलो। हेलो। कोई बात नहीं, तू 7 बजे तक भाई, तू टेस्ट नहीं होगा तो सुबह 8 बजे छोड़। कैसे तो Yes, ma'am. Ma'am, your voice went once again. is it audible now? Yes, ma'am. Turn on your camera. What, ma'am? Turn on your camera to see you. Okay. Hi, how are you? Fine, ma'am. What's your name? Is your What? name? Your name is Ma'am, Ramandeep. wait a minute. Some happened. I think there is some issues with your side. Ma'am, it's okay. No. What's your name? Is your name Ramandeep or you are just logging in with your father's Ma'am, account? I'm just logging in with my mom's device. My name is Ansh. Ansh. Yes, ma'am. Hi Ansh. May I know something about you? From where you are joining and how are you? What are your hobbies? All of that. Uh, I'm from Delhi. I study in Jiduinka Public School, Sector 9. And my hobbies are to play chess in my free time. So at present you are staying in Delhi. Yes, ma'am. I'm in Noida. Okay, fine. So okay, Ansh, what do you want to study today? Shall I go with algebraic expression? Shall I go with fractions and decimals? It's up to you. Whatever the topics you feel difficult, come with that. Ma'am, algebraic expressions. Fine. Give me a moment, Ansh. Tell me something about your hobbies and all. Ma'am, What do I you like want? to play chess in my free time. Okay, yes, you said. Very sorry. You like to play chess. Okay, Yes, ma'am. very good. Yesterday one of my students said that, ma'am, he joined the session late. Then I asked, what you were doing? Then Rivant, and he said, ma'am, I was taking chess session. I said, what they teach you in chess session? From my childhood, I only know that कि ऊंट सीधा चलता है नहीं ऊंट will go in the slant way हाथी Ma'am, सीधा I चलता also take some chess sessions. Oh, very good, Ansh. So then he told me, no, ma'am, they told us about the moves. They told I didn't know that. So it's very good. It's very good. आप भी लेते हो तो it's very good. Bravo. Sorry, Ansh. ठीक है. You are comfortable in English and Hindi both? Yes, ma'am. ठीक. Very good. चलो. Now algebraic expression. ठीक है.
कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट व्हाट इज अलजेब्रा? क्योंकि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो है इट्स डिराइव्ड फ्रॉम हम अलजेब्रा। इन अलजेब्रा हम वेरिएबल्स यूज करते हैं ताकि थोड़ा सा उसको हम अपने सम को आसान बना पाए। बहुत अच्छी बात है। तो वेरिएबल्स यूज करते हैं, तो वेरिएबल्स होते क्या है बेटा? वेरिएबल्स मतलब हम कुछ जैसे कोई लेटर ले लेते हैं किसी नंबर वगैरह के लिए। अच्छा, या अल्फाबेट्स, ठीक। ठीक है, तो वो तो एक एग्जाम्पल हो गया ना वेरिएबल का। एग्जैक्टली वेरिएबल होते क्या है? जैसे अगर मैं बात करूं आपके एज की, ओके, सो इज दैट अ कांस्टेंट और अ वेरिएबल? एज एक तरह का वेरिएबल हो गया। एज इक्वल्स टू कुछ नंबर ही तो होगा। ठीक है, वेरिएबल तो है, बट द प्रॉपर यू डिडंट जस्टिफाइड योर आंसर। देखो, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पहले बाद में। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो व्हाट इज अलजेब्रा। इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है। अब कांस्टेंट क्या होता है बेटा? कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है। ठीक है, जस्ट लाइक नंबर्स, जस्ट लाइक द ड्यूरेशन ऑफ द डे। इन वन डे यू हैव 24 आवर्स। ठीक है, तो ये तो हमेशा ही फिक्स्ड है बेटा। So that is यस मैम। constant. 1 hour is equal to 60 minutes. That is time fixed. So that is constant. तो जिसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होती है उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। एंड दोस वैल्यू चेंजेस विद द टाइम, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल। ठीक है, आपकी एज वेरिएबल है। क्यों? बिकॉज आज मान लो आप 12 years 5 months के हो, तो कल आपकी एज 12 years 5 months 1 day होगी। ठीक है ना? तो इट चेंजेस विद द टाइम। योर वेट इज अ वेरिएबल। आप जितना खाओगे उतने मोटे हो जाओगे, मैं जितना खाऊंगी उतने मोटे हो जाओगे। सो इट चेंजेस विद द टाइम। सो एनी वैल्यू दैट चेंजेस विद द टाइम, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल। Like your weight, my height, no, height, my height is constant now, your height is variable. Okay, fine. ठीक है। अब जो ये कांस्टेंट और वेरिएबल मिल के बनते हैं, या तो इफ वी टॉक इंडिविजुअली अबाउट कांस्टेंट, ठीक है, या वेरिएबल, या कांस्टेंट वेरिएबल, या वेरिएबल वेरिएबल। ठीक है ना? अगर इनका कॉम्बिनेशन होता है बेटा, कांस्टेंट मीन्स -8, 3/5, ऑल द नंबर्स whose value does not change. वेरिएबल मीन्स x हुआ, x स्क्वायर हो गया, y हो गया, any variable, a b, anything. Okay, constant variable means the numbers multiplied with the variable. Numbers multiplied with the value means 4x, 3y, like this. And variable means two variables get multiplied, x y, y square z, x, a b c, a square b, all these. इन सब के कॉम्बिनेशन को हम कांस्टेंट बोलते हैं। इधर कांस्टेंट या वेरिएबल, या कांस्टेंट वेरिएबल, या केवल वेरिएबल और वेरिएबल। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है अंश, इसको हम लोग टर्म्स बोलते हैं। और जो टर्म्स होते हैं, ठीक है, ये सारे टर्म्स इधर उधर भाग रहे हैं। सो क्या करते हैं हम इनको, we collect them in at a place using two mathematical operator, that is addition and subtraction. एडिशन और सब्ट्रैक्शन को यूज करके हम जब इनको एक साथ कलेक्ट करते हैं, तो कलेक्शन ऑफ टर्म्स यूजिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज algebraic expression. Is that clear? यस मैम। This is called as algebraic expression. ठीक है? In algebraic expression, the first thing that we are going to learn is about coefficients. ठीक है? Coefficients बहुत ध्यान से देखिएगा आज। Coefficients हमारे दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल एज द नाम सजेस्ट। कोफिशिएंट का मतलब हमारे दोस्त। ठीक है, अब मान लो आपसे पूछा गया कि अच्छा ओके अंश, आपके कितने फ्रेंड्स हैं? ठीक है, तो आप भी मान लो आपका पूरा 5 का ग्रुप है। सपोज इफ यू हैव अ ग्रुप ऑफ 5, अगर मैंने पूछा अंश हाउ मेनी फ्रेंड्स डू हैव, तो आप अपने को थोड़ी इंक्लूड करोगे, बोलोगे मैम मेरे 4 फ्रेंड्स हैं, राइट? जो आपके साथ आ रहे हैं उनको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, अब उसी कोफिशिएंट में हम दो तरीके की बात कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल मींस नंबर, ठीक है, द नंबर विच इज अकम्पनी। और दूसरा होता है लिटरल्स। लिटरल्स का मतलब होता है बेटा अल्फाबेट्स। ठीक है, वेरिएबल्स, अल्फाबेट्स, ए बी सी डी, जो भी हमारे अल्फाबेट्स होंगे। ठीक है,
मान लीजिए मैंने आपको एक टर्म दे दिया, ठीक है ना, इफ आई हैव गिवन यू अ टर्म -4/5 एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। अब मैंने पूछा कि अंश व्हाट इज द लिटरल कोफिशिएंट, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड, ठीक है। तो जेड के सारे दोस्तों को आपको बताना है, ओके। अंश, तो आप बोलोगे मैम कोफिशिएंट ऑफ जेड इज -4/5 एक्स स्क्वायर वाई, सारे दोस्तों को बताएंगे, ठीक है। मैंने अब स्पेसिफिकेशन लगा दी, ठीक है। मतलब कुछ, अब अगर मैंने पूछा कि आपकी कितनी फ्रेंड्स गर्ल हैं, आपके कितने फ्रेंड्स बॉय हैं, उसी तरीके से मान लीजिए आई पुट सम रिस्ट्रिक्शन दैट हाउ मेनी व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ जेड। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बेटा, जो नंबर होगा अलोंग विद द साइन, साइन नहीं भूलना है ना, ठीक है। अगर मैंने बोला ओके अंश व्हाट इज द लिटरल कोफिशिएंट ऑफ जेड, तो आप इस पे आएंगे एल। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Sure. Yes, ma'am. Now can you tell me what was the literal coefficient of x square z? Yes, ma'am. Tell me. Yeah, Ansh, what is the literal coefficient of x square z? What is the literal coefficient of? X square z. Z. X square z. Ma'am, the x, y, z are only in the this equation. So for x there will be y and z as the literal coefficient, and for अगर y. मैंने आपसे एक्स स्क्वायर जी का पूछ लिया तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर जी का तो एक ही दोस्त है ना, वाई क्यूब, सिंपल, ओके। Mhm. उसको छोड़ के जो बचेगा वो उसका दोस्त हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने Ma'am. कोफिशिएंट बोला तो आप -4/5 बाई क्यूब बोलोगे, बट आई पुट द कंडीशन दैट इट शुड बी लिटरल कोफिशिएंट, देन यू विल गो विद इट। इज दैट क्लियर? Yes, कोफिशिएंट ma'am. पार्ट इज क्लियर? वेरी Yes, ma'am. ओके फाइन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट तो डन है, ठीक है। नाउ डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है, ये सारे आपके सिक्स्थ में हैं। अभी मैंने सिक्स के बैच में अलजेब्रा बच्चों को बहुत परेशान हुए, वो बहुत हाँ बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट, मैंने बोला कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग पढ़ना तो शुरू करो। नाउ दे मतलब अब तो वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बट स्टार्टिंग में हाँ ये तो नहीं समझ रहा है, क्योंकि बस उसमें कुछ नहीं है, एक्स वाई और एबीसी यूज हो गया है, बच्चे डर जा रहे हैं। मैंने बोला नहीं डरो, ध्यान से पढ़ो। और अलजेब्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सिक्स सेवेंथ एट कॉन्टिन्यूसली इट्स गोइंग टू हेल्प यू एकेडमिकली ऑल्सो, और भर भर के अलजेब्रा है क्लास सिक्स सेवन एट में। चलिए, डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन क्या होता है? सपोज एक्सप्रेशन मीन्स कलेक्शन ऑफ वेरियस टर्म्स, ठीक है। मान लो मैंने x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 4 x⁻³ वाई, ओके। तो हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ टर्म्स पता करते हैं, अंश। तो डिग्री ऑफ टर्म क्या होता है, वट एवर द पावर ऑफ द वेरिएबल्स वी आर हैविंग वी विल ऐड दोस पावर, ठीक है। तो यहाँ पे पावर क्या है, 3 है x की, और यहाँ पे दोनों की, इफ दे आर डिफरेंट आल्सो वी विल ऐड द पावर, मींस जरूरी नहीं है कि x की हो, इफ x and y is there we will add the power of x and we will add the power of y. So what is the degree of this term? Degree of this term is 5. इसकी बात करें तो यहाँ पे जीरो नहीं लगाना, ठीक है। एक्स वाई मीन्स एक्स टू द पावर 1 and y is having power 1. Power 1 means x is multiplied 1 times, y is multiplied 1 times. So 1 plus 1 is 2. Okay, Ansh? Now here Yes, ma'am. x is having power 3 and y is having power 4. X is multiplied to itself 3 times, y is multiplied to itself 4 times. ठीक है, so 4 plus 3 is 7. अब अगर पूछा गया डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन, तो ऑलवेज यू हैव टू गेट गो विद द हाईएस्ट डिग्री इन द एक्सप्रेशन। सो व्हाट यू विल से, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन इज 7, okay, or you can say that the expression is of highest degree 7. Is that clear? Yes, ma'am. Sure. Yes.
Just a now like and unlike terms. देखो, जो लाइक हो गए तो वो तो लाइक हो गए, जो लाइक नहीं हुए वो अनलाइक हो गए, ठीक है। तो वी विल लर्न ओनली द कंडीशन फॉर लाइक टर्म्स, ठीक है अंश? ये अच्छा है, जो लाइक हो गए वो लाइक हो गए, जो नहीं हुए वो तो अनलाइक हो गए, ठीक है। लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स की दो कंडीशन, ओनली टू कंडीशन स्टिक टू दैट। फर्स्ट, सेम वेरिएबल्स शुड बी देयर। अच्छा अंश, आपको ऐसा कोई भी टॉपिक मैथ्स का लगता है कि यार ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका क्या यूज है? ऐसा कोई टॉपिक लगता है? जैसे मुझे हिस्ट्री में बहुत लगता था यार, ये क्यों, मतलब क्या यूज है इसका? मैम न्यूमरल्स रोमन न्यूमरल्स क्यों पढ़ाते हैं जब हमारे काम में नहीं आने हैं? बट है तो बहुत इंटरेस्टिंग ना। यस मैम। हाँ ये तो है थोड़ा सा, ये बात, ये तो आप सच बोले यार कि आगे चल के तो उतना कुछ यूज है नहीं। मे भी नहीं, ऐसा भी नहीं है, हम लोग एनक्रिप्शन में भी नहीं यूज कर सकते क्योंकि सारे तो रोमन न्यूमरल्स पढ़ के आए ही होंगे ना। some variables should be there, same variable should be there, same powers of the variable. आपको आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आज? मैं मैथ्स। वेरी गुड, आप तो मेरे टाइप के हो यार। मुझे तो साइंस कुछ समझ में नहीं आता, मुझसे साइंस कैसे, मतलब बहुत डिफिकल्ट लगती है साइंस। और साइंस में मुझे फिजिक्स, आई लाइक फिजिक्स अलॉट, बट बायो और केमिस्ट्री तो, केमिस्ट्री तो मेरे यहाँ से जाती है, तो यहाँ भी नहीं टच करती, एकदम तुम ऊपर से निकल जाती आराम से पढ़ते हुए। मुझे कुछ समझ नहीं आता केमिस्ट्री में, बाप रे इतना डिफिकल्ट होता है वो। 10th तक की तो फिर भी ठीक है, 11th तक तो मेरे एकदम मेमोरी से गायब ही है केमिस्ट्री का। याद ही नहीं है कि मैंने कभी 11th ट्वेल्थ में बुक्स भी पढ़ी है केमिस्ट्री की। चलो देखो, ठीक है। लाइक टर्म्स पहचानना क्यों जरूरी है? बिकॉज जब हमारे पास बहुत सारे टर्म्स दिए होते हैं अंश, सो वी कैन इजिली ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द डिफरेंट टर्म्स, ठीक है ना? हम लोग इजिली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाए टर्म्स को, इसीलिए हमें लाइक टर्म्स पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना? सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर द लाइक टर्म? सेम वेरिएबल शुड बी देयर, सेम पावर्स ऑन द वेरिएबल, ठीक है। जैसे अगर मैंने दिया 4/7 एक्स स्क्वायर वाई जेड एंड -3 एक्स स्क्वायर जेड क्यूब, तो अगर मैंने पूछा कि क्या ये लाइक टर्म है अंश, तो आप क्या बोलोगे? यस ना, दे आर लाइक टर्म, बिकॉज व्हाट यू हैव टू चेक the variables. So x, y, and z present here. X, y, and z present here. The power on the x is 2. Power on the x is 2. Power on the y is 1. Power on the y is 1. Power on the z is 3. Power on the z is 3. Okay. So इस कंडीशन में हम ये बोलेंगे कि yes, it is a like term. ये like terms है। अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट है अंश आपको? नहीं है तो फिर नो मैं मैम। आगे। वेरी गुड। अब करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बहुत इजी है। Okay, now suppose if I ask you to add a and you have to find the sum of a and b, ठीक है? तो एक तो मेथड होता है जो आपका मतलब नॉर्मली होता है कि आप a को पूरा लिखो, फिर b को पूरा लिखो, फिर a के जो लाइक टर्म्स है उनको मैच करा के साथ में लिखो, ठीक है? बट आई टीच यू विद द हेल्प ऑफ अ कॉलम मेथड, ठीक है? कॉलम मेथड लिखते हैं। कॉलम मेथड में क्या देखेंगे कि देखिए x cube है, first let's write down whatever the variables we are having, whatever the
टर्म्स वी आर हैविंग, ठीक है। तो एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स वाई स्क्वायर. Okay. Now, Ansh, we'll start writing the numerical coefficient of x cube in A. A लिखेंगे. What is the numerical coefficient of x cube? Beta 2. What is the numerical coefficient of x square y? 3. What is the numerical coefficient of x y square? Minus 1. Minus 1. Now go on with the addition with x cube. Just search where is x cube. It's here. Minus 5. Okay. Then minus 3. Then plus 6. For y cube it's plus 8. Now add it. ठीक है. जब एडिशन करते हैं बेटा तो साइंस विल बी सिमिलर, कोई साइन का चेंज नहीं होता. मीन्स नाउ आपको अब इंटीजर के पास जाना है, ठीक है. -5 + 2, -5 + 2, two different integers. You have to find the difference. So what is the difference of -5 and 2? It's -3x cube. Negative and the sign of the greater number will be copied down. Okay. अगेन +3 - 3 इज 0. तो यहाँ पे 0 हो गया तो कोई कोफिशिएंट नहीं होगा एक्स स्क्वायर वाई. ओके. नाउ 6 - 1 is 5. So 5xy square and 8 - 4 is 4. So +4y. So what is the final answer? -3x cube plus 5xy square plus 4x. Is that clear? Yes, ma'am. Sure. Yes, ma'am. Can you tell me the sum of P and Q? Ma'am, first we have to write all the variables in here, like x. Can you solve it? Ma'am, just doing it in the proper. Ma'am, ma'am, it should be x cube plus minus 2y cube plus minus 3x square plus minus 3x square. X. Ma'am, y square. ठीक है, कोई बात नहीं. पहले देखो प्लस माइनस ऐसे नहीं करेंगे. एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. We'll write the coefficient of for p. We'll write the coefficient of x cube. That's -2. Sorry, -2. Then it's -3. It's -8. For q, what is the coefficient of x cube? +3 +7 +5. ठीक है. अब देखो ऐड करते हैं. पहले तो 3 - 2. व्हाट इज 3 - 2? 1. ठीक है. अब 1 के नीचे x cube. बेटा प्लस माइनस करके नहीं हो,
ठीक है ना, यू हैव टू डू द प्रॉपर ऑपरेशन कि क्या करना है और क्या साइन आना चाहिए. +7 - 3 विल बी +4 ठीक है. +5 - 8 विल बी -3x². ठीक है, तो ये प्लस माइनस ऐसे नहीं होना चाहिए. इट शुड बी, यू हैव टू टेल मी द आंसर लाइक x³ +4y³ -3x² Is that clear? Yes, ma'am. Any doubts still here? Because now I'm going to tell you about subtraction, and that is little important. Ma'am, no doubts. आप स्कूल से कब आते हो बेटा? Ma'am, around 3. और जाते कब हो आप? Ma'am, I leave from my home at 7. My God, around 8 hours in a 8 hours outside the home. But that is the best life. Means this life will not, you will not get back this life. अभी आप हम लोग किड से पूछोगे कि आपको क्या चाहिए, वी विल मीन सबने यही कहना है कि वी वांट अवर स्कूल डेज अगेन. चलिए क्या कर सकते हैं, है ना? ठीक. देखिए, अगर मैंने आपसे बोला जस्ट a माइनस, यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ a एंड b, और इफ आई हैव आस्क्ड यू दैट फाइंड a माइनस b, आप क्या करोगे? आप a लिखोगे, आप b लिखोगे. कोफिशिएंट्स, लेट्स राइट द कोफिशिएंट x y सेम. इट्स कॉल्ड एज कॉलम मेथड बेटा. ठीक है, क्योंकि वी आर अरेंजिंग इन अ कॉलम एंड वी आर सॉल्विंग सेम अलोंग विद द साइन. साइन नहीं भूलना है, अदरवाइज सब गड़बड़ हो जानी है. ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन. ठीक है. अच्छा, एक चीज बताइए कि अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो इट मीन्स व्हाट? -6 -8, है ना? राइट Yes, आज. ma'am. और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है ना, हमने Yes, ऑलरेडी ma'am. पढ़ रखा. तो बस सब्ट्रैक्शन में आपको यही पता करना है कि जो नीचे वाले नंबर्स होंगे उनका साइन चेंज होगा. जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना, माइनस विल बिकम प्लस, प्लस विल बिकम माइनस, माइनस विल बिकम. Now, what you will be getting? -6 + 8 will be +2x. +7 - 2 will be +5. -8 + 3 will be -5. ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. Sure. और देख लीजिए इसको ध्यान से. I'm seeing. Ma'am, seen. तो दिस इज ऑल यू आर हैविंग इन योर algebraic expression. और कुछ अलग से नहीं है आपके algebraic expression में. आप अपनी बुक भी देखोगे तो ऑल द टॉपिक्स. मैम, मेरी बुक में कुछ नहीं है इनमें से. क्या मतलब आपकी बुक में आपने जो शेयर किया था algebraic expression, तो उसमें यही सारी चीजें. मैम, कुछ नहीं है. कुछ नहीं है मतलब क्या है? ज्यादा मतलब कुछ नहीं है. मेरी अच्छा, बुक में कोएफिशिएंट ये सब नहीं मिलेंगे. लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स मैंने देखा था आपके बुक, तो ठीक है, मतलब थोड़ा सा लेवल सिंपल किया है. ठीक है ना, बट आपके एकेडमिक्स में ये हेल्प करेगा. ठीक. अगर आपको अपनी तरफ से कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, उससे कोई दिक्कत. मैम, नहीं है. Give me the feedback of the class. Ansh, did you like the class? You understood the concept? How was the class? Yes, ma'am, I understood it. Okay. ठीक है, ठीक है फिर. हाँ, Okay, ma'am.